اوگاڑا یونیورسٹی میں یونیسیف پاکستان کے اشتراک سے پولیو کے خاتمے کے لیے آگاہی سیمینار کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد نے کی۔ مقررین نے پاکستان میں پولیو کی موجودہ صورتحال پر بحث کی۔ رنالہ خورد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف مذہبی جماعت کی جانب سے احتجاجی ریلی میں علماء کرام سمیت سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پتوں کی بغاوت کی سیاسی رہنما کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی گئی، جس میں تمام مکاتب فقہ کے علماء کے علاوہ مذہبی سیاسی تاجر برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ لاہور کے علاقے ہنجروال میں لڑکوں نے لڑکی کے بھائی پر تشدد کر کے اس کی 15 سالہ بہن کو اغوا کر لیا۔ لاہور کی اقتصادی دہشت گردی عدالت ATC نے لانگ مارچ کے دوران باٹی گیٹ تھانے میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف PTI کے 14 رہنماؤں کی ضمانت منظور کر لی۔ کراچی ٹریفک پولیس نے مونسون بارشوں کے پیش نظر شہریوں کی سہولت کے لیے فری وہیکل ریپیئرنگ سروس متعارف کروا دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد اونٹ کی سواری کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کراچی کے علاقے کلفٹر میں محکمہ داخلہ سندھ کے حکم کی خلاف ورزی پر 4 ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا گیا۔ کوئٹہ کے علاقے ہرائی کے دباہ میں مزدوروں کے کیمپ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 مزدور جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 11 سال کی لڑکی کی شادی کرانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس نے لڑکی کی والدہ کی درخواست پر کارروائی کی اور والد سمیت 3 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فائبر آپٹکس کی امپورٹ پر ٹیکسز میں کمی کی سفارش کر دی۔ فائبر آپٹکس نہ بچھائی گئی تو لوگ ATM بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ کمیٹی نے فائبر آپٹکس کی امپورٹ پر ٹیکسز میں کمی کی سفارش کر دی۔ کراچی کے علاقے عائشہ منزل پل پر ڈیمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، نتیجے میں 2 افراد جاں بحق۔ گلگت بلتستان کے سیاحتی مقام نلتر میں سیاہ خاتون ڈاکٹر اور ان کے شوہر نے سترنگی جھیل میں ڈوبنے والے لڑکے کو دل کی دھڑکن اور سانس کو بحال کرنے کے ہنگامی طریقہ کار CPR دے کر جان بچا لی۔ دونوں میاں بیوی کے لڑکے کو CPR دے کر جان بچانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین کی جانب سے ان کے اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। तो लेकिन सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। अब्दुस सत्तार ईधी 28 फरवरी 2028 को एक मेमन मुस्लिम घराने में पैदा हुए। एक पाकिस्तानी इंसान दोस्त, ऐसी शख्सियत के हामिल जिसने ईधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकार एम्बुलेंस नेटवर्क है। मुख्तलिफ बेघर पनाहगाहों, जानवरों की पनाहगाहों, बहाली मराकज़ और यतीम खानों के साथ पाकिस्तान भर में आपकी खिदमत काबिल रश्क है। अपने ईमान के सवाल पर वो कहा करते थे कि वो एक दोस्त और रूहानी शख्सियत के मालिक हैं। उनके मुताबिक खाली अल्फाज और लंबे जुमले खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। खुदा को ईमान अमल के जरिए दिखाएं। एक ज़माना था जब सफ़र पैदल और घोड़ों पे या बैलगाड़ियों वगैरह पे किया जाता था और एक मकाम से दूसरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। उसके बाद फिर रेल आई और इस सफ़र के दौरानिए में खातिर ख्वाह कमी हुई। उसके बाद जो जो दुनिया तरक्की करती गई, रेल तरक्की करती गई, इस सफ़र के दौरानिए में मज़ीद कमी आती गई। दुनिया में कई मकामों पर रेल जो है वो 300 या 400 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी चलती है। पाकिस्तान में रेल का निज़ाम अब भी इन्हीं 100 साल पुरानी पटड़ियों पर चल रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा मर्दान टू चारसदा पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद बना, और एक टुकड़ा है वो कश्मोर लाइन है जो डीजी खान को और आगे जैकोबाद को कनेक्ट करती है। ये हमने पाकिस्तान ने बनाया। उसके अलावा वी हैव नॉट डन मच। आप ये कह सकते हैं कि ट्रैक हमने मेंटेन किया है जो हमें अंग्रेज़ देके गया था। उसको सेफ्टी के लिहाज से चलते रहे, लेकिन उसकी ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सके हम। कहीं पे 110 है, कहीं 65 भी है। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे परमानेंटली ट्रेन 15 किलोमीटर पे भी आ जाती है। रेल के नीचे स्लीपर हैं, बैलेस्ट है, उसके नीचे जो बैंक बना हुआ है अर्थवर्क जैसे रोड का होता है, वो बहुत पुराना है। स्पीड उस वक्त 40-50 माइल थी, किलोमीटर में इतनी थोड़ी बन जाएगी, 60 बन जाएगी। अब हम 105 पे चला रहे हैं गाड़ी इस वक्त, 95 भी है, 105 भी है। इस स्पीड के लिए वो डिज़ाइन भी नहीं था। इस वक्त जो वर्स्ट ट्रैक है हमारा वो है सखर डिवीज़न का ट्रैक है। वो आप समझ लें कि टड्डो आदम से लेकर आगे नवाबशाह है, आगे रोड़ी है, आगे खानपुर है। इस एरिया में जो ट्रैक है उसकी हालत खासी ही ख़राब है और वो ज़्यादा देर चलने के काबिल नहीं है अनटिल अनलेस कि हम उसको टोटली रिप्लेस ना करें। जो ट्रैक्स बिटवीन रावलपिंडी एंड लाला मूसा एंड रावलपिंडी पेशावर, ये मेन लाइन तो है, लेकिन ये कंडीशन कोई अच्छी नहीं है, पैथेटिक है। लाहौर के मरकज़ी रेलवे स्टेशन का ये पुल कई दहाइयों पुराना है। यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं ये अंग्रेज़ के दौर का बना है, यानी तकसीम से भी पहले का ये पुल बना है। रेलवेज़ इस पुल की वजह से परेशान नहीं है, वो उन पुलों की वजह से परेशान है जो इन रेलवे ट्रैक्स के रास्ते में आते हैं। ये पुल दरियाओं पर, नदी नालों पर कायम है और कई दहाइयों से कायम है, बहुत पुराने हो चुके हैं। उन पर से रेल को गुजारना अब मुश्किल होता जा रहा है। पुलों की तामीर के साथ साथ जो पटड़ी है वो कई मकामात पर बल भी खाती है। जब ये प्रोजेक्ट अब एक्निक ने अप्रूव किया है तो हम इसे एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहे हैं रीजन के ऊपर। ये 1872 किलोमीटर लंबी लाइन है कि जो कराची से लेकर पेशावर तक कनेक्ट करती है पूरे पाकिस्तान को। इसके दरमियान में सारे बड़े स्टेशंस, ये सब बड़े शहर इसे लगते हैं। हम इसकी ट्रैक ज्योमेट्री सारी चेंज करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल ब्रिजेस वो हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है, अर्थवर्क हुआ है, उसमें उस वक्त वो इंग्रेडिएंट डाले ही नहीं गए क्योंकि उस वक्त वो था नहीं। उसको हम निकालेंगे, मट्टी को, सारी मट्टी को रिप्लेस करेंगे।
ऑब्वियसली उसकी रेल्स हैं, स्लीपर्स हैं, वो सारी चेंज हो जाएंगी और ये थ्रू आउट वेल्ड होगा। अभी आप जो गाड़ी चलती है तो आपको एक शोर, ठक ठक का शोर आता है, तो होपफुली इस ML1 के बाद वो साउंडलेस हो जाएगा। अराउंड 665 लेवल क्रॉसिंग है, तो तमाम के तमाम लेवल क्रॉसिंग को हम प्राइमरीली अंडरपासिस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर फेंसिंग आएगी इसमें। चौंतीस ट्रेनें हैं कि जो चल सकती हैं कराची से, लाइन कैपेसिटी जिसे हम कह रहे हैं, वो बढ़कर 171 तक चली जाएगी। इस वक्त जो स्पीड है वो कुछ तो सेक्शंस पे काफ़ी कम स्पीड हमें रखनी पड़ती है ट्रेन की, तो वो 65 से लेकर 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये बढ़कर 160 तक मैक्सिमम, 120 से 160 तक इसकी रेंज हो जाएगी। इसके बाद ये होगा कि कराची से लाहौर गाड़ी, अगर मैं नॉन स्टॉप की बात करूँ, अज्यूमिंग कि नॉन स्टॉप आ रही है, कंफर्टेबली 10 घंटे में आ सकती है। लाहौर पिंडी मोस्ट एरिया है बड़ा, ट्रैवलिंग लोग करते हैं मोटरवे पे 4.5 घंटे में, हम टारगेट कर रहे हैं 2.5-3 घंटे को। जिस तरह कराची हैदराबाद है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक है हमारी, वो लोग आना चाहते हैं, वो अगर हम उनको 1.5 घंटे में ले जाएं, रोड पे कौन जाएगा फिर? पाकिस्तान के ज़्यादातर रेलवे स्टेशन में दाखिल हों तो एहसास होता है कि आप तकरीबन 15 से 20 साल पीछे चले गए हैं। और ऐसे स्टेशन में सबसे बड़ी कोफ्त जो आपको जिसका सामना करना पड़ सकता है वो इंतज़ार की कोफ्त है, यानी ट्रेन किस टाइम आएगी भी या नहीं आएगी, और आप खुशकिस्मत हो गए अगर आपकी ट्रेन वक्त पर स्टेशन से निकल पड़े। और यहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिस पर ये मालूमात आ रही हों कि कौन सी ट्रेन ताख़ीर से आ रही है और ताख़ीर क्यों हो रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में रेलवेज़ का जो निज़ाम है वो मवासलात के लिए अब भी टेलीफोन के फरसुदा निज़ाम को यूज़ करता है। हम माइक्रोवेव पे बेस करते थे, माइक्रोवेव के टावर ख़राब हो गए, अब हम इसको बस ऐसे ही चला रहे हैं। हमारी वायर होती थी स्टेशन के साथ साथ, पूरे ट्रैक के साथ साथ, वो भी टूट गई। अब कम्युनिकेशन का फुकदान है हमारे यहाँ, इसमें हम थ्रू आउट ऑप्टिकल फाइबर ले करेंगे, राइट फ्राम कराची टू पेशावर। उसके ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग भी, गाड़ी किसी स्टेशन से हमने बात करनी है, उससे लाइव बात करनी है, वो बात हो सकेगी, ड्राइवर से बात हो सकेगी। और एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जो इस वक्त नहीं है हमारा यहाँ, वो लाहौर में डेवलप हो जाएगा। वहाँ से वो लाइव उसको पता चलेगा कि गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है। इसके साथ साथ जो और चीज़ें बदलेंगी उनमें एक बुनियादी चीज़ ये है कि जो रेलवे स्टेशंस हैं ट्रेन के रूट के ऊपर, वो कारोबार का मरकज़ बन जाएंगे। इस वक्त हम 4 या 5% उठाते हैं फ्रेट जो कराची से मूव होता है अप कंट्री, बहुत नॉमिनल शेयर है। इस प्रोजेक्ट में जो हमारा टारगेट है, हम 4 से 20% पे चले जाएंगे। अगर हम कराची से पेशावर तक प्रॉपर ट्रैक पे आ गए हैं, अच्छी गाड़ी चल रही है, तो पेशावर से आगे लिंकेज, तो फिर ट्रेन पूरी चली जाएगी आगे। एक तो ये लिंकेज हमारा अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान आगे जो स्टेट्स हैं, रशियन स्टेट है, उससे लिंक हो रहा है। दूसरा, हम जो लॉन्ग टर्म में सोचा हुआ है हमने, हवेलियाँ तक हमारा ट्रैक है इस वक्त, टैक्सला से हवेलियाँ से खुंजराब। इस प्रोजेक्ट में हम एक ड्राई पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं छोटा, हवेलियाँ के ऊपर। जो भी वहाँ से कंटेनर आएगा वो हम हवेलियाँ पे उसको अनलोड करेंगे और वहाँ से ट्रेन के ज़रिए कराची ले जाएंगे। अगर वो लिंक हो गया तो फिर हम डायरेक्ट ट्रेन से लिंक हो जाएंगे चाइना के साथ। ML1 प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो ट्रेन का निज़ाम चल रहा होगा उसको बाकी निज़ाम से मुख्तलिफ रखा जाएगा, ताकि ये जांचा जा सके कि इसकी कारकर्दगी बाकी के निज़ाम के मुकाबले में कैसी है और इससे रेलवेज़ को कितना फ़ायदा हो रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रखना चाहते हैं, मेंटेन इसको खुद करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक। जो ही ML1 बनती है हम ऑफ़र कर देंगे प्राइवेट पार्टीज़ को। पार्टी अपने लोकोमोटिव चलाएगी, अपनी वैगन चलाएंगी, वो खुद चलाएंगे। कंट्री को तो नो डाउट फ़ायदा होगा, लेकिन हम उनसे सिर्फ अपने ट्रैक पे चलने का किराया लेंगे।
वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें, उकाड़ा यूनिवर्सिटी में यूनिसेफ पाकिस्तान के इश्तराक से पोलियो वायरस के खात्मे के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें यूनिसेफ से फुरकान शबीर और अहमद शेरीश और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल से तैमूर अब्दुल्ला के अलावा दीगर मुकर्रीन ने पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मौजूदा सूरत हाल, पोलियो वैक्सीन के हवाले से पाए जाने वाले मुख्तलिफ अबहामात और मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुमकिन इकदाम पे बहस की। सेमिनार में असातिज़ा और तुलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार की सदारत इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर एंड प्लेटोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने की। उन्होंने अपने खिताब में पब्लिक हेल्थ के अहम मसाइल और मौज़ूआत पर साइंसी और इल्मी मुबाहिसात के मौक़िफ़ फराहम करने पर वायरस से चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सेमिनार के शुरका को इस बात की तरगीब दी कि वो पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली काविशों में भरपूर ताउन करे। फुरकान शबीर ने तुलबा को हदायत की कि वो मकामी आबादियों में पोलियो वैक्सीन से मुतल्लिक पाए जाने वाले अबहामात के खात्मे और लोगों में इस बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात के हवाले से शऊर पैदा करने के लिए मुहिम चलाई। यूनिसेफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान अभी तक दुनिया के इन 3 ममालिक में से एक है जहाँ पे पोलियो वायरस मौजूद है। दूसरे 2 ममालिक में अफगानिस्तान और नाइजीरिया शामिल है। पाकिस्तान में पोलियो मुगाव मुहिम 1994 में शुरू की गई और तब से लेकर अब तक पोलियो के सालाना केसेस 20,000 से कम होकर 8 की शरह पे आ गए हैं। रेनाला खुर्द में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी रैली में उलमा कराम समेत सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रैली में शामिल मुजाहिरीन ने एहतजाजी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हिंदुस्तान के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन की गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ शदीद नारेबाजी, गुस्ताखी नबी की एक सजा, सरतन से जुदा के नारे, मुजाहिरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर भारतीय सफारतखाना बंद करने और भारतीय सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक OIC इजलास बुलाकर भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक भारत के तमाम तजारती और मसनूआत का बाइकआउट करें। रैली बाईपास से शुरू होकर अंदरूने शहर से होती हुई कलमान चौक में इख्तिताम पजीर हुई। पतोकी में भारत की सियासी रहनुमा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मुकातिबे फ़िक्र के उलमा के अलावा मजहबी सियासी ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। पतोकी में भारत की सियासी रहनुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली का इनेकाद किया, जिसमें तमाम मुकातिबे फ़िक्र के उलमा के अलावा मजहबी सियासी और ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। लाहौर के इलाके हुजरवाल में लड़कों ने लड़की के भाई पर तशद्दुद करके इसकी 15 साला बहन को अगवा कर लिया। तशद्दुद की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि लड़की की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं और उसे बाजियाब करवा लिया जाएगा। लाहौर की इत्तेसादी दहशतगर्दी अदालत ATC ने लॉन्ग मार्च के दौरान बाटी गेट थाने में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के 14 रहनुमाओं की जमानतें मंजूर कर ली। इत्तेसादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा की 28 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर की। पुलिस ने लॉन्ग मार्च के दौरान बाटी गेट थाने में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमाओं को दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात में नामजद किया था, जिन रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर की गई हैं। इनमें हमाद असर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, मुराद रास, अंदलीब अब्बास और दीगर शामिल हैं। इंतसादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची ट्रैफिक पुलिस ने मानसून बारिशों के पेश नज़र शहरियों की सहूलत के लिए फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस मुतारिफ करवा दी। कराची ट्रैफिक पुलिस के DIG अहमद चीमा ने एक निजी TV से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस मानसून बारिशों में आवाम की सहूलत के लिए मुतारिफ कराई गई है। उन्होंने कहा कि फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस पंचर लगाने, टायर में हवा भरने, गाड़ियों को टो करने, आग बुझाने के आलात समेत हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दीगर जरूरी सामान भी मौजूद होगा।
DIG ट्रैफिक ने मजीद कहा कि फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस तभी इमदाद भी फराहम करेगी, जबकि गाड़ी बंद होने की सूरत में 2 लीटर पेट्रोल गाड़ी को और आधा लीटर पेट्रोल बाइक को फराहम किया जाएगा, ताकि करीबी पेट्रोल पंप या करीबी मंजिल पर पहुंचा जा सके और ट्रैफिक में खलल पैदा न हो सके। अहमद चीमा के मुताबिक शहर भर में 26 पेट्रोलिंग ट्रैफिक व्हीकल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं, जिसमें बारिशों के दिनों में 8 शराय फैसल मेट्रोपोल से जिना टर्मिनल, 5 जिला जनूबी, 3 जिला गरबी, जबकि अहम शहराहों समेत दीगर मसरूफ सड़कों पर गश्त करेंगी। शहरी मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1915 पर राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की पेट्रोल महंगा होने के बायस ऊंट की सवारी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मज़कूरा वीडियो फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी ने ट्विटर पर शेयर की, जिसे रहनुमा PTI ने भी रीट्वीट किया। वीडियो में दोनों भाइयों को ऊंट पर सवारी करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में जहां एक तरफ फवाद चौधरी ऊंट पर दिखाई दिए, वहीं इनके अकब में लोगों का हुजूम भी देखा गया। फराज चौधरी ने अपनी ट्वीट में बताया कि कनियाल रोड जेहलम के इफ्तिताह के मौका पर फवाद साहब के साथ ऊंट पर सवारी की। उन्होंने मजीद कहा कि किसे पता था कि हुकूमत पेट्रोल को इतना महंगा कर देगी कि ऊंटों पर सवारी गाड़ी पर सफर से ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। फवाद चौधरी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसपे सार्फिन दिलचस्प और मजाकिया तबसरे कर रहे हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में महकमा दाखिला सिंध के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर 4 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुलसत्तार ईसानी के मुताबिक जिला में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 9 बजे बंद और तमाम शादी हॉल और बैंक्वेट में शादी और दीगर तकारीब रात 10:30 बजे बंद करने का हुक्म है। तमाम होटल, कॉफी शॉप और कैफे रात 11 बजे बंद करवाए जाएंगे। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत के अहकामात पर तवानाई बहरान से निमटने के लिए सिंध हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद ना करने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सिंध में तमाम बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया था। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, बेकर्स और दूध की दुकानों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। DC साउथ ने जिला के तमाम ताजरों से इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की है। कोयटा के इलाके हर्राई के नवाह में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। जराये के मुताबिक फायरिंग से 2 मजदूर जाबहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार फायरिंग की जगह पहुंच गए। जराये के मुताबिक कैंप में 100 के करीब मजदूर मौजूद थे। इसके अलावा हमलावरों ने मजदूरों के कैंप और मशीनरी को भी आग लगा दी। दूसरी जानिब वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजोंजो ने हरनाई के करीब मजदूरों के कैंप पर हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे और वो जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इसके अलावा वज़ीर आला बलोचिस्तान ने जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके सहराब गोट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 साल की लड़की की शादी करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने लड़की की वालिदा की दरख्वास्त पर कार्रवाई की और वालिद समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की का वालिद रकम के एवज बच्ची की जबरदस्ती शादी करवा रहा था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने फाइबर ऑप्टिक्स की इंपोर्ट पर टैक्सेस में कमी की सिफारिश कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। टेलीकॉम हुकाम ने बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स की दरामद पर एडवांस टैक्स को 15% कर दिया गया है, ताहम हमारा मुतालबा है कि एडवांस टैक्स को 8% किया जाए। टेलीकॉम इंडस्ट्री के नुमाइंदगान का कहना है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के आलात को पुरस्ताइश करार दिया गया है और इंपोर्ट ड्यूटी को 20% तक बढ़ा दिया गया है। उनका कहना था कि बाहर से फाइबर ऑप्टिक्स मंगवाना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में सिर्फ 10% टॉवर्स पर फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। मजीद सख्तियों के बाद हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। टेलीकॉम हुकाम का कहना था कि मुस्तकबिल में बिजली की तरह फोन कॉल्स भी लोड शेडिंग होगी। फाइबर ऑप्टिक्स ना बिछाई गई तो लोग ATM भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कमेटी ने फाइबर ऑप्टिक्स की इंपोर्ट पर टैक्सेस में कमी की सिफारिश कर दी।
कराची के इलाके आयशा मंजिलपुर पर डैम्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजे में 2 अफराद जान बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने डैम्पर को आग लगा दी, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने डैम्पर में लगी आग को बुझा दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मुकाम नलतर में सियाह खातून डॉक्टर और उनके शौहर ने सतरंगी झील में डूबने वाले लड़के को दिल की धड़कन और सांस को बहाल करने के लिए हंगामी तरीकाकार CPR देकर जान बचा ली। 14 बन कुनलतर सतरंगी झील में मवेशी चराते हुए एक लड़का डूब गया था, जिस पर लड़के को बचाने के लिए इसके चचाजाद भाई भी झील में छलांग लगाई। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत दोनों लड़कों को बेहोश हालत में झील से निकाला और इस दौरान वहां तफरीह की गर्ज से आने वाली लेडी डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी और इनके शौहर ने दोनों लड़कों को तिबी इमदाद दी। दोनों मियाँ बीवी ने दिल की धड़कन और सांसों को बहाल करने की हंगामी तरीकाकार CPR इस्तेमाल किया, जिससे एक लड़के की सांसें बहाल हो गई, ताहम दूसरा जान बहक हो गया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। दोनों मियाँ बीवी की लड़के को CPR देकर जान बचाने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और सार्फिन की जानिब से इनके इकदाम को सराहा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज। अल्लाह हाफिज़।